You find peace not by rearranging the circumstances of your life, but by realizing who you are at the deepest level. With that, we welcome you to My Good School Show episode 8, where passion meets education. I am Anvesha. And I am Simar, and we will be your hosts for the event. Today we have some special guests joining us. We would like to invite Mr. Jagjeev Singh, who is one of the most peaceful people we know, and our friend Rishona will also be joining us today. Thank you for being here. In the words of Thomas Aquinas, the concept of peace not only includes the idea of harmony, but also enriches it. Therefore, wherever you find peace, you will also find harmony. Absolutely. With that, let's invite Jagjeev sir. Sir, our question to you is, when do you feel the most peaceful during the day and why? So in the course of my normal day, I'm most peaceful after praying in the morning, doing yoga, after finishing doing yoga, reading the newspaper and relaxing in the morning. Morning cup of coffee when I'm having, that's the other time when I'm relaxing. After I have made my list of things to do for the day, because that just puts me at peace because I know what I have to do. Then when you tick off what you've done in the course of the day, and at the end of the day when you're able to sort of see where you reached at the end of the day, I feel fairly peaceful. I feel fairly peaceful after my evening walk, because one feels one has achieved something and one's a little relaxed. During the walk, observing nature, one is fairly relaxed and peaceful. I'm fairly peaceful just before I go to sleep. I do a short prayer, and that sort of makes me feel peaceful. So I guess you get peaceful when you're praying, when you sort of feel things are under control, when you see nature. Yeah, that's it, I think. Thank you so much for sharing your insightful thoughts with us, sir. Let's invite Rishona to the mic now. Hi Rishona, we would like to ask you, who is the most peaceful person you know? For me, the most peaceful person on earth is my mother. She is the one who taught me to be calm in every situation, even despite fights and challenges. She also taught me that the most peaceful person can only be God, and we are just His messenger on earth to continue His message of peace. That was wonderful, Rishona. We loved to know that. Being mindful about yourself, your surroundings and your beliefs is the ultimate kind of peace that one can attain. With that, we come to the end of our podcast. Comment below and let us know if you liked our podcast. If you want to be a part of similar podcasts, join us. We hope to meet you soon again when we are back with a podcast on quality next month. That's all for us today. ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मृते निसब प्रपंचाय शांताय निरालंब्या तेजसे। अर्थ, गुरु सभी का आत्मा है, सत्य, ज्ञान और आनंद का अवतार है, जो संसार से परे, शांत, स्वतंत्र और दीप्तिमान है। उन्हें नमस्कार है। माय गुड स्कूल में एक साल वास्तव में तेजी से बीत गया है, जो हमारे हिंदी सत्र का भी अंत करता है। इस सत्र का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं यशराज और मैं वाणी हिंदी के सत्रों की यात्रा के बारे में इस पॉडकास्ट में
पॉडकास्ट की मेजबानी करने के लिए यहाँ हैं। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पॉडकास्ट को और अधिक रोचक बनाने के लिए हमें अपने कुछ और जॉली इंटर्न्स और आवश्यकता होगी? सच में, इसलिए मैं अपने दोस्तों और इंटर्न्स रिशोना, शांभवी, आरफा, संदीप सर और जुगजीत सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। रिशोना, शांभवी और आरफा, कृपया हमारे साथ हिंदी सत्र के लिए अपने विचार और अनुभव साझा करें। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ की यात्रा वास्तव में कुछ और ही थी। तो चैन और स्वामी से अंग्रेजी सत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे लगता है कि भोलू, स्वामी और दो चैन बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। ये इत्तेफाक ही है कि हम तीनों दोस्तों की कहानियां पढ़ रहे थे। जैसे कि हम अध्याय या बारीक दिमाग से गुजरे तो ये बहुत ताज़ा महसूस हुआ। हमारी इस घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ को पढ़ने में अलग ही मजा था। कल्पना की इस बनावट में एक ताजगी और नयापन है। उपन्यास में बच्चों के सपनों की दुनिया जैसी खूबसूरत चीजें हैं। भाषा की चमक के साथ साथ भाषा का संगीत भी कहानी को आकर्षक बनाता है। भाषा की अंतरिक्त रचना आख्यास के साथ साथ वर्तमान के बोध को सजीव करती है। इस सत्र में हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ जैसी अद्भुत किताब पढ़ना असल में एक बहुत नए अनुभव के जैसा था, जिसने हमें एक नए नज़रिए के साथ भी प्रदान किया। इस किताब ने हमें एक और बहुत ही अच्छे दोस्तों के समाहार से भी परिचित करवाया। धन्यवाद वानी और यशराज और हमारे प्यारे साथी। संडे स्कूल की बदौलत से हिंदी पढ़ने के लिए मेरा प्यार फिर से जाग उठा है। हरे घास की छप्पड़ वाली झोंपड़ी और बौना पहाड़ पुस्तक के चयन के लिए चंद्रप्रभा मैडम का विशेष धन्यवाद। मुझे भोलू की यात्राएं और सपने, दोस्ती और उनकी कल्पना कैसे बेतहाश दौड़ती है, बहुत अच्छा लगा। रिशोना और यशराज द्वारा तैयार किए गए कई गतिविधियां आनंद और सीख से भरी थी। वानी बहुत अच्छा पढ़ती है और आरव भी। मुझे जुगजीत सर, देवगन सर और मोनिशा मैडम सहित हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक छात्र को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद के लिए आरफा, शांभवी और ढेर सारे बच्चे, सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलके। और मुझे लगता है जो हमारी ये जिंदगी की कड़ी है, किताबें पढ़ने की, एक दूसरे से सीखने की, कुछ हमारी जिंदगी में एक बड़ी अच्छी सफर की कहानी बना के जाएगी। धन्यवाद यशराज और वानी। हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत बनने के लिए और हमारा मनोबल ऊंचा रखने के लिए धन्यवाद सर। अब मैं हमारे लिए कुछ शब्द कहने के लिए जुगजीत सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। वह एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं जिन्होंने उत्साहपूर्वक हिंदी के सत्रों में भी भाग लिया है। मैं महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने कुछ शब्द हमारे साझा करें। धन्यवाद यशराज, आपने मेरे को अंग्रेजी टीचर बना दिया। पर यह बात सही है, मेरी अंग्रेजी मेरी हिंदी से बहुत बेहतर है। माय गुड स्कूल के हिंदी सेक्शन में मैं हिंदी को फिर से सीख रहा हूँ। जैसे संदीप ने कहा कि बहुत मतलब अच्छा लग रहा है हिंदी फिर से बोलने में और सुनने में। और जो शुरू में जैसे चंद्रप्रभा मैडम पढ़ रही थी, मेरे को लग रहा था कि उनकी आवाज में जादू है। उसके बाद एक और बात मैं कहूंगा कि मेरे को लगा कि जो हमारा हिंदी का पढ़ने का जो स्तर है
वो इंग्लिश से बेहतर है। यशराज, अरफा, अन्वेषा, शोना, वानी, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा। और जो खास बात मेरे को ये लगी कि पिछले कुछ महीनों से आप लोग ने सारा इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का सारा बंदोबस्त आप खुद कर रहे हो। ये मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप खुद ये आगे चला रहे हो। और इसके लिए आप लोग को बधाई हो और दूसरे साल के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी ये बातें निश्चय ही सत्य हैं। तुम्हारे बारे में क्या यशराज? एक सक्रिय हिंदी JOL इंटर्न होने के नाते और हर सत्र में भाग लेने का आपका सफर कैसा रहा? मैंने अंग्रेजी की तो बहुत सी किताबें बचपन से पढ़ी हैं, लेकिन हिंदी की किताबों में को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। परंतु पिछले 1 साल में माई गुड स्कूल के माध्यम से मैंने हिंदी की कहानियां भी पढ़नी शुरू की हैं, जिससे मेरी रुचि हिंदी की किताबों में भी बढ़ गई है और साथ ही साथ मेरी हिंदी शब्दावली में भी सुधार हुआ है। अब मुझे हिंदी भी रोचक लगने लगी है। हमने जो यह उपन्यास हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ पढ़ा है, उससे मुझे बहुत से लोक भाषा के शब्दों का भी ज्ञान हुआ है। साथ ही साथ हमने समय पर उपन्यास पर आधारित प्रश्नावली आयोजित की, जिससे हमारे हिंदी पठन और रोचक और ज्ञानवर्धक हुआ। आपका क्या कहना है वाणी? हिंदी सत्रों का हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा बहुत खुशी की बात रही है और इस अद्भुत किताब को पढ़ना, हरे घास की छप्पड़ वाली झोपड़ी और बोना पहाड़, निश्चित रूप से मुझे अपने बचपन में वापस ले जाता है और मेरी प्यारी यादों से जुड़ता है। जब मैं किताब के पन्ने पढ़ती थी तो अपने आप के एक किरदार में बदल जाती थी। मेरी पसंदीदा कूना थी एक प्यारी लेकिन मजबूत छोटी लड़की। हिंदी सत्र ने अन्यथा मेरे हिंदी पढ़ने के कौशल और हिंदी में मेरी रुचि में भी सुधार किया है। इसके साथ ही हम अपने पॉडकास्ट के अंत में आ गए। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा। आज हमारी तरफ से बस इतना ही। ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानंद मृते निसब प्रपंचाय शांताय निरालंब्या तेजसे। अर्थ: गुरु सभी का आत्मा है, सत्य, ज्ञान और आनंद का अवतार है, जो संसार से परे, शांत, स्वतंत्र और दीप्तिमान है। उन्हें नमस्कार है। माई गुड स्कूल में 1 साल वास्तव में तेजी से बीत गया है, जो हमारे हिंदी सत्र का भी अंत करता है। इस सत्र का हिस्सा बनकर हमें बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं यशराज और मैं वाणी हिंदी के सत्रों की यात्रा के बारे में इस पॉडकास्ट की मेजबानी करने के लिए यहाँ है। लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि इस पॉडकास्ट को और अधिक रोचक बनाने के लिए हमें अपने कुछ और जॉली इंटर्न्स और आवश्यकता होगी? सच में। इसलिए मैं अपने दोस्तों और इंटर्न्स रिशोना, शांभवी, आरफा, संदीप सर और जुगजीत सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ। रिशोना, शांभवी और आरफा, कृपया हमारे साथ हिंदी सत्र के लिए अपने विचार और अनुभव साझा करें। हाँ, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि हमारी हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ की यात्रा वास्तव में कुछ और ही थी। तो चैन और स्वामी से अंग्रेजी सत्र में मैंने बहुत कुछ सीखा है।
मुझे लगता है कि भोलू, स्वामी और दोदो चांद बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। ये इत्तेफाक ही है कि हम तीनों दोस्तों की कहानियां पढ़ रहे थे। जैसे कि हम अध्याय या बारीक दिमाग से गुजरे तो ये बहुत ताजा महसूस हुआ। हमारी इस घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ को पढ़ने में अलग ही मजा था। कल्पना की इस बनावट में एक ताजगी और नयापन है। उपन्यास में बच्चों के सपनों की दुनिया जैसी खूबसूरत चीजें हैं। भाषा की चमक के साथ साथ भाषा का संगीत भी कहानी को आकर्षक बनाता है। भाषा की अंतरिक्त रचना आख्यास के साथ साथ वर्तमान के बोध को सजीव करती है। इस सत्र में हरी घास की छप्पड़ वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ जैसी अद्भुत किताब पढ़ना असल में एक बहुत नए अनुभव के जैसा था, जिसने हमें एक नए नज़रिए के साथ भी प्रदान किया। इस किताब ने हमें एक और बहुत ही अच्छे दोस्तों के समाहार से भी परिचित करवाया। धन्यवाद वानी और यशराज और हमारे प्यारे साथी। संडे स्कूल की बदौलत से हिंदी पढ़ने के लिए मेरा प्यार फिर से जाग उठा है। हरे घास की छप्पड़ वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ पुस्तक के चयन के लिए चंद्रप्रभा मैडम का विशेष धन्यवाद। मुझे भोलू की यात्राएं और सपने, दोस्ती और उनकी कल्पना कैसे बेतहाश दौड़ती है, बहुत अच्छा लगा। यशोना और यशराज द्वारा तैयार किए गए कई गतिविधियां आनंद और सीख से भरी थी। वानी बहुत अच्छा पढ़ती है और आरव भी। मुझे जुगजीव सर, देवगन सर और मोनिशा मैडम सहित हमारे साथ जुड़ने वाले प्रत्येक छात्र को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद के लिए आरफा, शांभवी और ढेर सारे बच्चे, सबको बहुत अच्छा लगा यहाँ मिलके। और मुझे लगता है जो हमारी ये जिंदगी की कड़ी है, किताबें पढ़ने की, एक दूसरे से सीखने की, कुछ हमारी जिंदगी में एक बड़ी अच्छी सफर की कहानी बना के जाएगी। धन्यवाद यशराज और वानी। हमेशा हमारे प्रेरणा स्रोत बनने के लिए और हमारा मनोबल ऊंचा रखने के लिए धन्यवाद। अब मैं हमारे लिए कुछ शब्द कहने के लिए जुगजीत सर को आमंत्रित करना चाहूंगा। वह एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं जिन्होंने उत्साहपूर्वक हिंदी के सत्रों में भी भाग लिया है। मैं महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि अपने कुछ शब्द हमारे साझा करें। धन्यवाद यशराज, आपने मेरे को अंग्रेजी टीचर बना दिया। पर यह बात सही है, मेरी अंग्रेजी मेरी हिंदी से बहुत बेहतर है। माय गुड स्कूल के हिंदी सेक्शन में मैं हिंदी को फिर से सीख रहा हूँ। जैसे संदीप ने कहा कि बहुत मतलब अच्छा लग रहा है हिंदी फिर से बोलने में और सुनने में। और जो शुरू में जैसे चंद्रप्रभा मैडम पढ़ रही थी, मेरे को लग रहा था कि उनकी आवाज में जादू है। उसके बाद एक और बात मैं कहूंगा कि मेरे को लगा कि जो हमारा हिंदी का पढ़ने का जो स्तर है वो इंग्लिश से बेहतर है। यशराज, अरफा, अन्वेषा, शोना, वानी, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने पढ़ा। और जो खास बात मेरे को ये लगी कि पिछले कुछ महीनों से आप लोग ने सारा इस कार्यक्रम को आगे ले जाने का सारा बंदोबस्त आप खुद कर रहे हो। ये मेरे को बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप खुद ये आगे चला रहे हो। और इसके लिए आप लोग को बधाई हो और दूसरे साल के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपकी ये बातें निश्चय ही सत्य हैं। तुम्हारे बारे में क्या यशराज?
एक सक्रिय हिंदी JOL इंटर्न होने के नाते और हर सत्र में भाग लेने का आपका सफर कैसा रहा? मैंने अंग्रेजी की तो बहुत सी किताबें बचपन से पढ़ी हैं, लेकिन हिंदी की किताबों में को बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा जाता। परंतु पिछले 1 साल में माय गुड स्कूल के माध्यम से मैंने हिंदी की कहानियां भी पढ़नी शुरू की हैं, जिससे मेरी रुचि हिंदी की किताबों में भी बढ़ गई है और साथ ही साथ मेरी हिंदी शब्दावली में भी सुधार हुआ है। अब मुझे हिंदी भी रोचक लगने लगी है। हमने जो यह उपन्यास हरी घास की छप्पर वाली झोपड़ी और बौना पहाड़ पढ़ा है, उससे मुझे बहुत से लोक भाषा के शब्दों का भी ज्ञान हुआ है। साथ ही साथ हमने समय पर उपन्यास पर आधारित प्रश्नावली आयोजित की, जिससे हमारे हिंदी पठन और रोचक और ज्ञानवर्धक हुआ। आपका क्या कहना है वाणी? हिंदी सत्रों का हिस्सा बनना मेरे लिए हमेशा बहुत खुशी की बात रही है और इस अद्भुत किताब को पढ़ना, हरे घास की छप्पड़ वाली झोपड़ी और बौना पहाड़, निश्चित रूप से मुझे अपने बचपन में वापस ले जाता है और मेरी प्यारी यादों से जुड़ता है। जब मैं किताब के पन्ने पढ़ती थी तो अपने आप के एक किरदार में बदल जाती थी। मेरी पसंदीदा कूना थी एक प्यारी लेकिन मजबूत छोटी लड़की। हिंदी सत्र ने अन्यथा मेरे हिंदी पढ़ने के कौशल और हिंदी में मेरी रुचि में भी सुधार किया है। इसके साथ ही हम अपने पॉडकास्ट के अंत में आ गए। नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आपको यह पॉडकास्ट कैसा लगा। आज हमारी तरफ से बस इतना ही। ट्यूनिंग के लिए धन्यवाद।